Good morning, dear students. Now we will move to the next topic. Now, just yesterday in first video we have seen that we balanced the chemical equation. क्या हमने equation को balance किया था. But why do we need to balance the chemical equation? क्या हमको chemical equation balance क्यों करना पड़ता है? What is the need? So that is the law of conservation of mass. What it is? Law of conservation of mass. You know that matter can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. मैटर को ना हम पैदा कर सकते हैं ना उसको मार सकते हैं. कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर मैटर क्या रहता है, दोनों सेम रहता है, चाहे वो रिएक्टेंट पे हो या प्रोडक्ट पे है. जितना मैटर रिएक्टेंट पे होगा रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में भी सेम ही रहेगा, वो कोई चेंज होने वाला नहीं है. दैट इज नॉट दैट मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर destroyed. Understand? So now we will see the next topic is that different types of chemical reactions. Which are that chemical reactions? Now we will see the types of chemical reaction. So there are 5 types of main chemical reaction. Which are they? First is combination reaction, second is decomposition reaction, third is displacement reaction, fourth is double displacement reaction, and fifth is oxidation and reduction. Now combination reaction. So simply we will study about the combination reaction. So answer is written in the name only. Combination means combine, when two or more than two atoms combine and form a new product. Okay, two elements combine and form a new product, that is known as combination reaction. Second is decomposition. Decompose, when a compound it breaks into 2 or 3 elements, then it is known as decomposition reaction. Third is displacement reaction. Displacement reaction, when a less reactive metal replaces the more reactive metal, then it is known as displacement reaction. Double displacement reaction, when there is exchange of ion between the two compounds. What exchange of ion, then it is known as double displacement reaction. Whereas the oxidation and reduction, oxidation means oxygen is added and hydrogen is removed. Whereas in reduction, oxygen is removed and hydrogen is added. So these are the 5 types of main chemical reactions. Other reactions are also that, like endothermic reaction, exothermic reaction, but we will move out further, then we will study about that. Now first we will study about the reaction, that's combination reaction. Now combination reaction, so the reaction in which two or more reactants combine to form a single product. वो reaction जिसके अंदर दो या उससे ज़्यादा reactants क्या होता है, combine होते हैं और एक single product form होते हैं, उसको बोलते हैं combination reaction. Suppose first reaction is A, सेकंड इज द बी, दूसरा क्या दिया हुआ है बी, वो दोनों कंबाइन होकर क्या फॉर्म होंगे ए बी. तो डेट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल वी विल सी फर्स्ट बर्निंग ऑफ कोल. क्या देखेंगे, बर्निंग ऑफ कोल. कोल मीन्स क्या होता है, कार्बन. हाउ इट इज सॉलिड. कार्बन कैसा होता है, सॉलिड. वो किससे रिएक्ट करता है, बर्न करता है एयर से. एयर मीन्स ऑक्सीजन. CO2 इट इज इन गैसियस फॉर्म. व्हेन दिस टू कंबाइन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस फॉर्म में होता है. ओके, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट formation of water. क्या formation of water, how the water is formed. तो first hydrogen, that is in the gaseous form, it combines with oxygen, that is in gaseous form. Hydrogen plus oxygen it forms water, H2O, that is in the liquid state. water कैसे state में होता है, liquid state. तो here you see there is a change of state. You can observe gas plus gas, it gets the liquid. Okay, so this was the first type of reaction, that is known as combination reaction. Now we will move towards the next, that is decomposition reaction. Now we will see decomposition reaction. In the reaction, a compound splits into 2 or more elements. What? A reaction which compound splits into 2 or more elements, that is known as decomposition reaction. For example, a compound is given A, it will split into other 2 reactants, B plus C, that product will be B, C, whatever, D. So that is known as decomposition reaction. Now decomposition reaction, so there are 3 processes are involved in decomposition reaction. First is thermal decomposition reaction, second is electrolyte decomposition, and third is the photolysis decomposition. कौन कौन से 3 है, thermal decomposition, electrolyte decomposition, and the photolysis decomposition. Now all this involve 3 different methods. In all those 3, breakdown will be there. compound क्या होगा, 2 या 3 एलिमेंट्स में ब्रेकडाउन होगा, पर उसके लिए अलग अलग डिकम्पोज तो हो ही रहा है, वो टूट रहा है, पर उसके लिए 3 अलग अलग प्रोसेस हो रहा है. एक है जिसके अंदर हम बोलेंगे कि थर्मल डिकम्पोजिशन है, जहाँ पे हीट यूज़ हो रही है, क्या हो रहा है, उसको गर्म किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, व्हेन इट इज़ हीटेड इट ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो कैल्शियम कार्बोनेट वॉज ए सॉलिड,
जब उसको हमने हीट किया तो उसमें से क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड होगा, प्लस उसमें से क्या लिबरेट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो गैसियस फॉर्म में है। अंडरस्टैंड। सेकंड है इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन। व्हाट इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन, तो यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस, मीन्स द ब्रेकडाउन ऑफ द कंपाउंड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, डेट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। हम यहाँ देखेंगे कि वाटर कैसे फेज होता है, कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। जब उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगी, गैसेस फॉर्म में, प्लस ऑक्सीजन भी कौन से फॉर्म में होगी, गैसेस फॉर्म में होगी। अंडरस्टैंड। तो हियर द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे डिकम्पोजिशन कौन सी प्रोसेस से हो रहा है, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, सो इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एंड थर्ड, व्हेन इट हैपन्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या होता है, जब वो किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस, सूरज की किरणों के प्रेजेंस में जब वो होता है तो उसको बोलते हैं फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। व्हाट, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। वो कहाँ देखने को मिलता है, जब वो ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी होती थी तो बोलते हैं ना ब्लैक वो दिखता था वो, तो उसके अंदर वही यूज होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड, व्हाट सिल्वर क्लोराइड इज ए सॉलिड, but when sunlight passes over it, okay, what sunlight passes over, it decomposes into Ag, that is silver plus chlorine, both are solid। यहाँ पे क्या होता है, वो सिल्वर क्लोराइड का ब्रेकडाउन होता है और हमको क्या मिलता है, सिल्वर प्लस क्लोरीन। तो दिस आर द थ्री डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच दे आर पॉसिबल। क्या, किस तरह से वो पॉसिबल होता है, एक फिर से थर्मल डिकम्पोजिशन दैट इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, उसको गर्म करने से ये प्रोसेस होती है। सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने से ये रिएक्शन होता है। और थर्ड जो है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। और ये ओनली कहाँ पे यूज़ होती थी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज़ होता था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक थर्ड पे पढ़ेंगे, कौन सा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट displacement reaction. What, displacement reaction. So what is displacement reaction? When more reactive element displace the less reactive elements, when more reactive element displaces less reactive element, that is known as displacement reaction. For example, हम लेते हैं आयन, क्या लेते हैं, आयन, that is solid plus copper sulfate. What, copper sulfate, that is aqueous solution because copper is dissolved in a water solution, okay, so copper sulfate. So what happen, we will get that FeSO4, हमको क्या मिलेगा, आयन सल्फेट और फेरिक सल्फेट प्लस copper. What, plus copper. So what happen, iron is more reactive element. What it is, more reactive element than copper. वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या हो जाएगा, किसके साथ वो रिप्लेस कर देगा, वो कॉपर को हटा के खुद उसकी जगह पे आ जाएगा, वो उसके साथ कंबाइन हो जाएगा, क्या बनेगा, आयन सल्फेट प्लस यू विल गेट द कॉपर। व्हाट, यू विल गेट द कॉपर। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर से जो ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट होगा, रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वो क्या करेगा, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसको रिप्लेस कर देगा। क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह वो ले लेगा। लेस रिएक्टिव की जगह जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उसकी जगह ले लेगा। जैसे हमने लिया आयन प्लस कॉपर सल्फेट। आयन क्या होता है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आप रिएक्टिव चार्ज में देखेंगे, इट इज़ मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। सो व्हाट हैपन, इट विल रिप्लेस कॉपर एंड इट विल फॉर्म विद द कंबाइन विद द सल्फेट एंड इट विल फॉर्म आयन सल्फेट प्लस copper, okay, it will be separated, so that is known as displacement reaction. Now next is the double displacement reaction. क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द टू कंपाउंड्स। अब उसके अंदर जो आयंस होते हैं उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो उसको अपने आयंस देता है, वो एक्सचेंज हो जाता है आयंस और नया कंपाउंड फॉर्म होता है, दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है। आप सिंपली देखेंगे फर्स्ट के अंदर एक ही के बीच में एक्सचेंज हुआ है, जो कॉपर सल्फेट एक्सचेंज हो गया, लेकिन उसके साथ कोई एक्सचेंज हुआ नहीं है, तो सिंगल एक्सचेंज। बट हियर बोथ डू द म्यूचुअल एक्सचेंज एंड व्हाट हैपन, द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, सो दैट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट, व्हाट इट इज, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट विथ रिएक्ट्स विथ बेरियम क्लोराइड, किसके साथ रिएक्ट होता है, बेरियम क्लोराइड। दिस टू आर द रिएक्टेंट्स, बोथ आर एक्वियस सॉल्यूशन, दोनों कैसे हैं, एक्वियस सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। तो when they react, what happened, this Na will combine with Cl and this sulfate will combine with, means there is exchange of ion, this ion with chlorine with barium it will exchange with, can combine with sodium, and this sulfate will combine with barium and you will get barium sulfate। क्या मिलेगा हमको, बेरियम सल्फेट प्लस
sodium chloride. What you will get? Sodium chloride. तो this is called double displacement reaction. क्या बोलते हैं इसको? Double displacement reaction. Now the last one, what? Oxidation and reduction. The last one, the next one is the oxidation and reduction. So what is oxidation? So I said that oxygen means when the oxygen is added. क्या होता है? ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन. फॉर एग्जांपल कॉपर प्लस O2, तो कॉपर इज डिफरेंट एंड O2 इज डिफरेंट. कॉपर और ऑक्सीजन तो अलग है, दोनों कंबाइन होकर क्या बोल रहा है? कॉपर ऑक्साइड. तो हियर ऑक्सीजन इज एडेड. व्हाट? ऑक्सीजन इज एडेड. तो इसको क्या बोलेंगे हम? कॉपर और ये क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड. तो दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन. क्या होता है? इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन. अब उसका अपोजिट दूसरा है जो है रिडक्शन. क्या है? रिडक्शन. रिडक्शन के अंदर क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड होता है. क्या होता है उसके अंदर? हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है. क्या हो जाता है? ऑक्सीजन रिमूव होता है. वाइसा वर्सा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. क्या है? कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. वन दे विल रिएक्ट. व्हाट हैपन? कॉपर विल बी सीमेंट. तो यार ऑक्सीजन इज सेपरेटेड. व्हाट? ऑक्सीजन कॉपर में से क्या हो गया? सेपरेट. और वो क्या हो गया? H2O के साथ कंबाइन हो गया. बट यहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है. क्या हो रहा है? इधर ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है. आप सोचो, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है. तो जब किसी रिएक्शन में दोनों होता है, ऑक्सीजन कंबाइन भी होता है, रिमूव भी होता है, दोनों जब पॉसिबल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन. व्हाट इट इज नोन एज? रेडॉक्स reaction. Okay, when both are added and removed. Okay, oxygen is added also and it is removed also. देखो ऑक्सीजन यहाँ पे था, वो रिमूव होके कहाँ पे ऐड हो गया? इसके अंदर ऐड हो गया, हाइड्रोजन में ऐड हो गया. हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन में ऐड हो गया. कहाँ हो गया? तो डेट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन. अंडरस्टैंड? नाउ वी विल नो द नेक्स्ट थर्मल रिएक्शंस एंड एंडोथर्मल रिएक्शन.